नमो भगवते वासुदेवाय। करारविन्दे न पदारविन्दौ मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयन्तम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीनाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। हे मेरे सज्जन मंडली, प्रवीर यूट्यूब चैनल को आप मान को स्वागत करुछि। प्रिय श्रोता बंधु, आज आपण मान आगे गोटे एपरी चरित्र कथा आपण मान आगे उपस्थापन करी जहां श्रवण करने से व्यक्तिर योग्यता थिबा दरकार। अयोग्य व्यक्ति केवे यहाँ श्रवण करने उचित नुहे। या माने नुहे जे मु कहूथिबा कथा ठीक, किंतु आज जो प्रभुंकर लीलार कथा कहवा जीवी मु कहू नहीं, शुकदेव गोस्वामी ही कहिबे। जेमती आमर पंच प्राण अच्छी, आउ पंच प्राणक मध्य मुख्य प्राण होची गोटिए। आउ भागवत रे पंच प्राण मध्य गोपी गीत हेउची मुख्य प्राण। परीक्षित महाराज को शुकदेवंकर प्रश्न। परीक्षित महाराज श्रीमद भागवत महापुराण को श्रवण करुछंती। आ शुकदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत को श्रवण कराउछंती। आज जेते बड़े शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत श्रवण कराइले, प्रथम गोटे प्रश्न पचारिले जे आज को 5 दिन हो गलानी, परीक्षित महाराज तुम्हें सेमिति बसीच, तुमरा नेत्र हलुनी, तुमरा नेमी हलुनी, तुमरा देह हलुनी, तुमको भोक लगुनी, तुमको शोष लगुनी, तुमको आलस्य लगुनी, निद्रा तुमको व्यतीत करुनी। परीक्षित महाराज कहले, गुरुदेव, कृष्ण कथारे तो मन अतीन्द्रिय अवस्था को चली जाए। ना मते भोक हेउछि, ना मते शोष हेउछि, ना निद्रा मते व्यतीत करुछि। किंतु गुरुदेव, मु गोटे कथा बुझी पारिलिनी, प्रभु मिलंती केमिति? निहाती कोन तप करिबा को पड़िबो? प्रभु को पाइबा पाई कोन सहज बाट होछि मंत्र? आखि बुझी कर कोन ध्यान करिबा को कोन नित्यांत आवश्यक? मनर प्रतिटी इंद्रिय को कोन एमिति जगिबा को पड़िबो? शुकाचार्य भगवान हसिले, कहले, परीक्षित, जदि से मंत्र रे मिली चाहता
ତେବେ ବେଦମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ତ କେବେଠୁ ପାଇ ସାରନ୍ତେଣି। ଯଦି ତପସ୍ୟାରେ ସେ ମିଳୁଥାନ୍ତେ ତେବେ ପରମ ବୈରାଗୀ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତ ସବୁଦିନ ପାଉଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ମିଳୁଥାନ୍ତା ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ସବୁଦିନ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେ କେଉଁଥିରେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ମିଳନ୍ତି ଯଦି ଆତ୍ମୀୟତାରେ, ମିଳନ୍ତି ଯଦି ଭାବରେ, ମିଳନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରେମରେ ମିଳନ୍ତି। ସଚିତାନନ୍ଦ ରୂପାୟ ବିସର୍ଗତା ବିହିତପେ ତାପତ୍ରୟ ବିନାଶାୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ଅଭୟନମ। ସେ ସତ୍ ଚିତ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ। ଏ ଆନନ୍ଦ କୁଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରେମର ସହିତ ଭକ୍ତି କରେ, ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ହିଁ ମିଳିଯାଆନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲେ ତ କେଉଁଥିପାଇଁ? କୋଉ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଗୋପୀମାନେ? କେଉଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଗୋପୀମାନେ? ସେ ତପସ୍ୟାରେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ବିତରାଗୀ ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସେ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ବସିଯିବା ଉଚିତ। ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମତା ପ୍ରଭୁ କିପରି ମିଳନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଗୋପାଳା ଗଣ କରଦମ ବିହରସେ ବିପ୍ରାଭରୋ ଲଜ୍ଜସେ ବୃଷଗୋଧନ କୃତି ଶ୍ରୁତି ସତେ ମୌନ ବିଧତେ ସତାମ୍ ଦାସ୍ୟଙ୍ଗକୁଳଂ କାମିନେଶ ପୁରୁଷେ ସମ୍ୟାଂ ନଦାନତ ସେ ସୁବା ମନ୍ମେ କୃଷ୍ଣ ତବାଙ୍ଗ୍ରି ପଦ ଯୁଗଳଂ ପ୍ରେମୈକ ଲଭ୍ୟମୁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମିଳନ୍ତି କହିଲୁ ତ? ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମିଳନ୍ତି? ନା ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ନା ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ, ନା ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ? ଗୋପାଳା ଗଣକରଦମ ବିହରସେ ବିପ୍ରାଭର ଲଜ୍ଜସେ। ଏ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର କାଦୁଅ ଛଟା ଏବଂ ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ଆଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ହେଲେ ବେଦଜ୍ଞ ବିପ୍ର ମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ୟାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଏ ଲୁଚିକି ପଳାନ୍ତି। ବୃଷଗୋଧନ କୃତି ଶ୍ରୁତି ସତେଇ ମୌନଂ ବିଧତେ ସତା। ସରସ୍ୱତୀର ସ୍ତୁତି ୟାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଗାଈ ମାନଙ୍କର, ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କର ହମ୍ବାରକୁ ଏ ସ୍ତୁତି ଭାବି କୋଳେଇ ପକାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାଣୀ ପ୍ରଦାୟିନୀ ମା ଶାରଦାର ସ୍ତୁତି ୟାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଦାସ୍ୟ ଗୋକୁଳ କାମିନୀଶ ପୁରୁଷେ ସାମ୍ୟଂ ନଦାନ୍ତେ ଶୁଭା। ବେଦାନ୍ତୀ ମାନେ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତୁମ ଚାକର କରେଇ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବେଦବିଜ୍ଞ ଋଷିମାନେ ସ୍ତୁତି କରୁଛୁ, ଆମକୁ ତୁମର ଚାକର କରେଇ ଦିଅ। ଏ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ଅପାଠ ହୋଇ ଗୋପାଳୀ ମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏ ମୂଲିଆ ହୋଇଯାଏ। ବେଦାନ୍ତୀ ମାନଙ୍କର ମାଲିକ ହେବାକୁ ୟାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଚାକର ହେବାରେ ୟାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମନ୍ମେ କୃଷ୍ଣ ତବାଙ୍ଗ୍ରି ପଦ ଯୁଗଳଂ ଲବ୍ଧୟେକୋ ତେମାଂ। ମନ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଯିଏ ଭଜନ କରୁଥାଏ, ମନ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଯିଏ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ, ଏ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ, ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ ଜାଗରଣେ କେବଳ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବନି ତ ପାଇବ କାହାକୁ? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମିଳିବେନି ତ ମିଳିବେ କାହାକୁ? ମନ ଭିତରେ ବିଷୟ ବାସନା ଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସଂସାରର ବୋଝ ଥିବ, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପରି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପରି ନ ହେବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣକୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣକୁ ଭଗବାନ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରବଣ କରାଉଛନ୍ତି। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତ୍ରି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ବିଛୁରିତ କିରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଭୁ ଗୋପରେ କରନ୍ତି କ'ଣ? ଦିନ ବେଳେ ତ ଗୋଚାରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଦିନ ବେଳେ ତ ଗୋଚାରଣ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ବଂଶୀଟି ଧରି ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବଂଶୀ ବାଦନ କରନ୍ତି। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କିରଣରେ, ଚନ୍ଦ୍ରମାର କିରଣରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣରେ ସାରା ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯମୁନା କୂଳରେ ଥିବା ନିତ୍ୟ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ବସି ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଲା କେଜାଣି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ବଂଶୀକେ ବାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ନାମ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏ ବଂଶୀ ଦ୍ୱାରା ନାମ ପୁକାରରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଗୋପୀମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଗବାନ ହିଁ ତନ ରାତ୍ରି ସର୍ବତ୍ର ଫୁଲ ମଲ୍ଲିକା ବିକ୍ଷରନ୍ତୁ ମନସ୍ସକ୍ରେ ଯୋଗମାୟାମୁପାସିତଂ। ଭଗବାନ ଯେତେ ଥର ଅବତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେତେ ଥରିତ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ, ଏକା କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଓ ମା ଭଗବତୀ ଶଙ୍କରୀକୁ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯୋଗମାୟା ମା ଅମ୍ବିକା, ସେଇ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଆଜି ଯୋଗମା ବଳରେ ଏ ବଂଶୀ ନିଦାନରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋପୀମାନେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ସେ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ନାମ ଡାକାକୁ ଶୁଣି
पहुंची गले प्रभु निकट रे। निगम्यंगीतं तदनंगवर्धनं भज श्रियं कृष्ण दुहितमानसम् अजगमनि निर्वणं सरिंखिततमा सोजातकान्त भवलोक कुंडला। प्रभु पाई प्रीति केते, प्रभु पाई ममता केते, प्रभु पाई भल पाइबा केते, प्रभु पाई आनंद केते, प्रभु पाई आंतरिकता केते गोपी मानकर। जेतबळे बंशीर स्वर सेमानक कर्ण गोचर करिछि, केही काहाकु न कहि निजे निजे ही दौड़िबा आरंभ करिसंती से जमुना कूले थिया नित्य कदम्ब निकटकु जोटी प्रभु बसी बंशी वादन करिसंती। किए स्वामी को छाड़ी पळाई आसीछि तो, किए नवजात शिशु को छाड़ी पळाई आसीछि, किए गाई दुहुथिला पळाई आसीछि तो, किए श्रृंगार रस करुथिला पळाई आसीछि, आ किए लुगा पालटी थिला तो ए लुगा पालटा सेठी अछि। अर्धमंग अलग्न होई दौड़ी पळाई आसीछि भगवान को बंशी निदान सुनिके। आउ मो प्रभु जेतेबेले डाकंती न जाइबी हता नहीं। आउ प्रभु जेतेबेले डाकिछंती न जाइबी नहीं, किंतु प्रभु जेतेबेले चाहती नहीं तुम जेते सजड़ा ही थाओ, जेते धन संपत्ति तुम पाखरे थाओ, जेते गाड़ी घोड़ा सुविधा थाओ, जे पर्यंत प्रभुंकर डाकरा आसनी तुम प्रभुंक पाखକୁ जाई ही पारिब नहीं। आ आज जेतेबेले गोपी मान को बंशी माध्यम रे गोपी मान को डाकिछंती, ए गोपी माने रहंते बा केमिति? ए बंशी माधुर्य, रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, ए प्रभुंकर लीला माधुर्य सबु जाक मने पड़ीगला गोपी मानकर। आ गोपी माने दौड़िबा आरंभ कले, केही काहाकु डाकी नाहंती। ए गोपी माने दौड़ुछंती तो किपरि भाबरे प्रथमे कृष्ण को प्राप्त हेबे ए कथा को विचार के केही काहाकु समस्तंकर काले किए का सौतुन ही जीव, किए काले प्रभु को प्रथमे पाई जीव, ए कथा को चिंता करी गोपी माने केही काहाकु न कहि दौड़िबा आरंभ कले। गोपी माने जाई पहुंची गले से नित्य कदम्ब मूल रे। देखिले भगवान जोगेश्वर बंशी को बदाई आखि मुद्रित करी बंशी वादन करुछंती। गोपी माने कहले हमको तो डाकी देला, एबे तो ये आखि बुझी बसिछि, आम कथा सुनिब कि हे? दुसहरिष्ट विरह त्रिवेदां मधुता शुभा ध्यान प्राप्तं चितं श्लेषा निवृत्तं क्षण मंगला। विरह जलारे व्यथित हो गले गोपी माने, अनंग जालारे जर्जरित हो गले गोपी माने। गोपी माने चिंता करे जदि आमे आको न छुईबा, जदि आंक आखि मुद्रित को आमे भंग न करिबा, तेबे आमर समस्त कर्म समस्त आसीबार पथ केबे सफल हेबो नाही। गोपी माने छुई देले, आ गोपी माने छुई देले तो प्रभुंकर निर्दित थिबा मुद्रित थिबा चक्षु खोली गला। आ खोली गला तो देखिले गोपी माने तांको भेड़ी बसी छंती। भगवान कृष्ण हसी देले, आ हसी देई कहिले स्वागतन्ते महाभागा प्रिय किंकर वामते ब्रजस्यानं मयंकस्येत् गुप्तक गमन कारणम। स्वागतम, गोपीमान को भगवान कृष्ण स्वागत कले, स्वागतम करिदेले। स्वागतम महाभागा प्रियंकी कंरबा मते भल पाउथिबा प्रेम करुथिबा
गोपी मान को मु स्वागत करुछि। आगत स्वागत करदेले, अभिभाषण देदेले, परवर्ती मुहूर्त परिवर्तन ही भगवान कृष्ण कहले ब्रजन्यास्यानां मयं कश्चित् गुप्तगमन कारणम। कहले ब्रजरे किछि विपद पड़िला कि? एते रात्रि हेलानी, राति अध, राति 12टा बाजिलानी, ये गुप्तरे ए निकांच जंगल मध्य को तुम्हें माने आसिल कहीं? ये अधरात्रि आसीबार कारण कौन? घोर रूपा रजस्वीवा, घोर शक्त निवेशिता, प्रतिचाति प्रहजानेन स्त्रेयं संतान मध्यमा। भगवान कृष्ण कहउछन्ति तुम्हें बोधे जानी न जे तुमरी लगी आज मो पाई गोपर निंदाला नगरा लगुछि। तुम्हें माने एक कथा जानिबा उचित जे एते राति हेलानी, एते राति रे निकंच जंगल, जमुनाल कूल, नित्य कदम्ब मूल मु तो बसी हेले तुम्हें माने तुम पति स्वामी मान को, पुत्र मान को, कर्म को सब त्याग करी मो पाखे आसी पहुंचीबार कारण कौन? भगवान कृष्ण एकथा कहउछन्ति हे गोपी माने तुम मान को मु किपरि आनंद दे पारिबी कुह? प्रियंकी करणीबा रात्रि समय एपरी समय ये घोर बन स्त्री माने रहिबा उचित नुहे। एपरी समय तुम्हें माने कौन वृंदावन प्राकृतिक शोभा देखा आसीच कि? ए सुंदर रात्रि सौंदर्य उपभोग करने को आउ आसीच कि? हौ जहाँ देखा कथा देख, जहाँ उपभोग करने कथा कर, कि शीघ्र एठू पलाई जाओ। घरे तुम मानकर स्वामी पिला माने अपेक्षा करिथिबे, खोजुथिबे। निज निजर पति सेवा, संतान को लालन पालन करबा तुमर धर्म। यथाशीघ्र एठू चली जाओ। गोपी माने कहले अरे ये केमिति कथा? ये डाकिला बेलू तो कौन कि आमको डाकिदेला, से ता पाखरे पहुंची गला परे ये एमिति कथा कौन कहूची? भगवान एक कथा को श्रवण करी गोपी माने परस्पर मुह को चाह चई हेले, कहले ये केमिति कथा? हमको तो डाकिले पुणी एक कथा कहउछन्ति। भगवान कृष्ण भी कहवा आरंभ कले जे घर को फेरी जाओ। यार आउ एक अर्थ मध्य भगवान कहउछन्ति जे जीव भगवान के स्वरूप जाई मिसी जाए, तापाई आ घर को फेरिबार बाट न थाए। हेले परमात्मा सहजरे जीव को मिलती नहीं। भगवान ताको संसार को फेरी जीवा पाई कहउछन्ति बोली जीवर भ्रांति हो जाए। भगवान केवल चाहती नहीं जे ताकर गोपी अर्थात शुद्ध जीव पुणी थरे संसार को फेरू, किंतु भगवान गोपी प्रति थिबा प्रेम भाव को परीक्षा करने को चाहती। तेणु संसार सुख अच्छी बोली कहती, तुम्हें संसार को फेरी जाओ। भगवान कर एक कथा सुनी गोपी माने निजको असंजत मन कले, निजको दुर्बल मन कले, निजको असुरक्षित मन कले। जहाँ डाकरे संसार छाड़ी, जहाँ डाकरे संसार प्रेम को छाड़ी परमात्मा का प्रेम पसी, से परमात्मा जिते संसार को फेरिबा को कहउछन्ति, सेतले गोपी माने किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाइछन्ति। आ भगवान कृष्ण भी कहवा आरंभ कले। भगवान केते चतुर देखंतु। ए संसार मोहमाया रे फसीबा पाई, संसार मोहमाया रे पड़िबा पाई भगवान अनेक
थर जीव को परीक्षा करने पाई ए प्रयास जारी रखती। आज से प्रयास जारी रखिछंती गोपी मान क्षेत्र में। भगवान पति धर्मर आदर्श कहउछंती जे तुमे माने जो पति को छाड़ी के आसीछ, संसार को छाड़ी के आईछ, संसार रो सुख को छाड़ी के आसीछ, आ स्वामी मान को छाड़ी के आसीछ। ये स्त्री मानकर धर्म किपरि स्वामी के प्रति भगवान कृष्ण बुझाउछंती। पति धर्मर मूल आदर्श होची पति सेवा करिबा। पति को ठारे ईश्वर भाव न रखिथिबा नारी इहलोक परलोक उभय लोक नष्ट होइथाय। भ्रतु शुश्रूण स्त्रीणाम परधर्म यमायामा तद्वधूनां च कल्याणं प्रदानं चानुपोषणं। भगवान कृष्ण कहले जे स्त्री और शूद्रंग पाई कलिजुग महान आशीर्वाद। कलिजुगरे माने अति शीघ्र मुक्ति पाई जानते। शूद्र आचरण शुद्धि न करी केवल राम नाम नेउथिले सब किछि सफल हो जाए, किंतु ब्राह्मण को राम नाम सहित तार आचरण को मध्य शुद्ध करने को पड़ी थाए। आ सेपरी न कले ब्राह्मणर पतन होता है। जदि स्त्री पति सेवा सहित कुटुंबर समस्त प्राणी कथा बुझुए, भल भाव बुझुवा अवस्था राम नाम नेउथाए, तेरे मंदिर को जबर सामान्यतम आवश्यकता नहीं। कहीं ना मंदिर रे प्रभु अछंती, घरे प्रभु अछंती, अत्र तत्र सर्वत्र प्रभु अछंती। ज्ञानी माने से कथा ही देखंती। विद्या विनयी संपन्ने ब्राह्मण गविहस्तिनी सुनिचुचि सुपाके संग पंडिता समदर्शिना। जे प्रकृत रे ज्ञानी, जे प्रकृत रे पंडित, से प्रभु को समस्त स्थान रे देखे। हाथी भितरे प्रभु को देखे, कुकुर भितरे प्रभु को देखे, पिपुड़ी भितरे प्रभु को देखे, जीव देखे प्रभु को देखे, निर्जीव देहरे प्रभु को देखे, वृक्ष रे प्रभु को देखे, लतारे प्रभु को देखे, बाहरे प्रभु को देखे, अंतर मध्य मध्य प्रभु को देखे। तो मंदिर आवश्यकता नहीं मंदिर को जीवा पाए। तेणु गोपी मानकर यही भाव को परिवर्तन करने पाई, पुनराय संसार को फेरी जीवा पाई भगवान कृष्ण जो पतिव्रता नारीर धर्म कथा कहउछंती। प्रकृत रे आजिकाली का पत्नी माने किपरि भाव पति मान को प्रेम करुछंती, किपरि भाव पति सेवा करुछंती, ताहा निश्चिंत भाव भागवत शिखिबा उचित। तेणु भगवान कहउछंती जे तांको पाखु आसीथिबा गोपी मान को भगवान उपस्थित देउछंती। स्त्री को कौन सियाड़े अथवा बाहर को जबर आवश्यकता ही नहीं। बाहर को जाउथिबा स्त्री स्वेच्छाचारी हुए पतिता होइथाए। जो नारी घरे रही उत्तम गृहिणी धर्म पालन करुथाए, से पवित्र रहिबार अनुकूलता पाए। निजर पति संपर्क और संतानकर ठारे ईश्वर भावना रखी सेमानकर सेवारे निजको तन मन धन समर्पण करथिले और परमात्मा को स्मरण करथिले, से मंदिर को न जाय सीधा अन्यास रे सद्गति पाए, जहाँ जोगी और सन्यासी दुर्लभ होता है। से कथा नारद जते प्रभु को पचारे, प्रभु दिन ही कहते नहीं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेन च मद्भक्त जत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। तेणु वैकुंठपुरी रे नाहंती प्रभु, जोगी मानक हृदय रे मध्य नाहंती, मंदिर भीतर मध्य प्रभु नाहंती। प्रभु थांती सेठी जोठी भक्तटीए ताको अनायास प्रेम रूपक आबिलता सहित प्रभु को भजन कीर्तन करुଥାଏ ଏବଂ ଡାକୁଥାଏ। ये जेमिति जगह थाऊ, जेपरी स्थान रे थाऊ, जेपरी भाव रे थाऊ, जेपरी कर्म रे थाऊ,
भक्तटीए यदि प्रभु को डाकी दे थाए प्रभु निश्चिंत भाव रे ता पाखरे पहुंची जाते। तेणु प्रभु को पाइबा पाई कौन सी पूजा सामग्री आवश्यकता नहीं। प्रभु को पाइबा पाई मंदिर को जीवार आवश्यकता नहीं। प्रभु को पाइबा पाई मंत्र तपस्यार आवश्यकता नहीं। प्रभु को पाइबा पाई संसार को त्याग करी वन गमन जाई तपस्या धन करिवार आवश्यकता नहीं। प्रभु को पाइबा को हेले संसार मध्य रही संसार समस्त कर्म करी अन्याय से प्रभु को जे डाकु थाए, प्रभु को जे चिंतन करू थाए, प्रभु को जे मनन करू थाए, प्रभु को जे पूजन करू थाए, प्रभु निश्चिंत भाव रे ता पाखरे ही पहुंचते। आ जो पत्नी निज स्वामी को स्वामी स्वरूप देखे, भगवान स्वरूप देखे, ईश्वर स्वरूप देखे, ईश्वर परि निजर स्वामी को पूजा करू थाए ते भगवान को पाखु जीवार आवश्यकता नहीं। प्रभु निश्चिंत भाव रे ये पत्नीर स्वामी प्रति भाव, शाशु शशुर प्रति भाव, पिलामान प्रति लालन पानर भाव देखि निश्चिंत भाव रे प्रभु रत्न सिंहासन छुटी आसती भक्त पाखक को। भक्त प्रकृत भक्त जी ये संसार रे प्रकृत भक्त जी सर्वत्र अत्र तत्र सर्वत्र शयन स्वप्ने जागरण प्रभु को दर्शन करुए, मनन करुए, चिंतन करुए। ये मंदिर को जीवार आवश्यकता न थाए। प्रभु स्वयं मंदिर बाहरी भक्त पाखरे आसी उपस्थित होती पहुंची जानते। ध्रुव तपस्या करुले प्रभु वैकुंठ ही आसिले। प्रहलाद डाकुले भगवान प्रभु वैकुंठ ही आसी रक्षा करुले। तेणु प्रकृत भक्त जी मंदिर को जीवार आवश्यकता नहीं, पूजा सामग्री नबार आवश्यकता नहीं, फूल चंदन दबार आवश्यकता नहीं, 108 नड़िया बाड़ेबार आवश्यकता नहीं कि प्रभु को पाई भोग लगेबार आवश्यकता नहीं। जदि भोग लगेबार अच्छी निज मन को लगाओ। जदि प्रभु को द्रव्य दबार अच्छी तो मन को प्रभु को पाखे अर्पण कर दियो। मने मनुष्यणां कारणं बंधन मुख्य। यही मन थिले संसार मोहमाया फसी जाए तो जन्मा जन्मांतर पाए से जन्म चक्र घुरी बोले। आ यही मन जदि चाहे ये प्रभुंकर से चरणार बिंदरे निजको समर्पित कर दे, प्रभु को पाखरे निजको समर्पण कर दे मुख्य मार्गरे वैकुंठ धाम को प्रत्यावर्तन करिथाए। तेणु भगवान कृष्ण नारी मान प्रति से कथा ही कहते। आउ जने कवि कही स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव, स्वामी सेवा नारी धर्म, स्वामी पदे भक्ति अर्चनारे मती, करी तू पारी बो प्रेम। तेणु भगवान कहते हे नारी माने, हे गोपी माने, जदि स्वामी मान को तुम्हें अवहेला कर, संसार को अवहेला कर, पिला मान को अवहेला कर, शाशु ससुर को अमर्यादा कर, ये सब पर जदि तुम्हें मो पाखक आस तेरे मु के तुमको देखा देवी नहीं कि दर्शन देवी नहीं। तेणु हे गोपी माने तुम्हें जाओ, संसार को फेरी जाओ। तुम स्वामी माने तुमको अपेक्षा करिथिबे, स्वामी माने तुमको प्रतीक्षा करिथिबे। तुम्हें स्वामी मान को चाहो, स्वामी मान को पाखरे पहुंच। भगवान कृष्ण संसार मध्य पत्नी पत्नी मध्य प्रेम ये स्वामी मान प्रति भक्तिर भाव को भगवान दर्शाउछंती, कहउछंती भगवान कृष्ण गोपी मान को। आ भगवान श्री कृष्ण गोपी मान को कहले तुम्हें माने शीघ्र फेरी जाओ, महान पतिव्रता धर्म को छाड़ी तुम्हें मैंने कहीं आसीच। पति और संतान के सेवारे मन प्राण जाड़ी देले तुम मान कल्याण हेब। आ श्रीकृष्ण से बुझावा चाहिए कहले मोर संजोग अपेक्षा मोर वियोग रे तुम्हें माने अधिक अनुकरण सुखी हो पार। घर को फेरी जाओ। वियोग अवस्था मते मन प्राण सहित स्मरण करुले
ତୁମମାନଙ୍କ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଧିକ ହୃଷ୍ଟ ହେବ। ସଂଯୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ତାହା ଦର୍ଶାଇବ। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସକଳ ବିଷୟର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରୟ ଲୋଡ଼ିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛୁ। ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ସମୂହ ବିବେକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମିଳନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମର ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ବୋଲି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାର ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ, ସେଇ ହିଁ ଗୋପୀ। ଏହି ସଂସାରରେ ବିଷୟକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇ ନଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ବା ଜୀବ ସହଜରେ ଶାରୀରିକ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅତି କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ମାନସିକ ତ୍ୟାଗ ନ କରି କେବଳ ଶାରୀରିକ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଜୀବ ଦାମ୍ଭିକ ହୋଇଥାଏ। ମାନସିକ ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତନ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ପଛେ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଯେଉଁଠି ଥାଅ, ଯେମିତି ଥାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଅ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, ପତିଙ୍କ ପାଖକୁ କେବଳ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିକାର ବାସନା ଆହୁରି ତୃପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ଅଥବା କିଛି ଥାଏ। ବିକାର ବାସନା ତ୍ୟାଗ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ହୁଏ। ଆମର ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ବିକାର ବାସନା ନାହିଁ। ଆମେ ନିର୍ବିକାର ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମ ନିର୍ବିକାରତା ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ? ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି ଯେ ତୁମର ବିକାର ବାସନା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି? ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। ଆମ ହୃଦୟରେ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ମନକୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଯିଏ ମନକୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଦେଖେ ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ସେ ମନର ଭାବ କୁଭାବ ପରୀକ୍ଷା କରିନେଉଛି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବିକାର ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଳଂ ବଧୂରାତ୍ମା, ଆମେ ନିର୍ବିକାରୀ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାସନା ଇଚ୍ଛା ଆମର ରହିଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତଥାପି କହିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ, ତୁମକୁ ମୁଁ ପତି ପତ୍ନୀର କଥା କହିଲି, ପତିର ଧର୍ମ କଥା କହିଲି। ପତ୍ନୀର ଧର୍ମ କିପରି ଭାବରେ ନାରୀ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିପରି ଭାବରେ ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଘୁଜନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମତ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତମେ ସେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛ। ଆରେ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛ, ତୁମେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଭାବିବେ କ'ଣ ତୁମକୁ? ଯାହା ତ ନିନ୍ଦା ନାଗାରା ଲାଗୁଛି ସଂସାର ଗୋପୀପୁରରେ ମୋ ନାଁରେ ତୁମକୁ ନାଁ ଯୋଡ଼ି, ପୁଣି ବି ରାତି 12ଟା ବାଜିଛି। ଏ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସମୟରେ ତୁମେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛ। ମୋ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ତ? ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ କଥା କହିଲ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ କଥା କହୁଛ, ଏତେ କଥା କହିଗଲ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କୁହ, କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ। ଗୋପୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କିଏ ନା ବିଶାଖା ସଖୀ ବିଶାଖା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପତିବ୍ରତା କଥା କହୁଛ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାନ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ଷୀଣ ମାତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀକୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସ୍ୱାମୀ ଦୂରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ନିଜ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ରୁହ, ଘରେ ବାପା ମା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି,
मो सहित तुम दूर रहिले प्रेम अधिक बढ़े मु जाऊँगी मु पुनराय तुम पाखक फेरी आसबि। गोपी माने कहउछन हे प्रभु ए भक्ति पतिव्रता नारीर स्वामी बाहर रहती आ पतिव्रता नारी जनक निज स्वामी गोटे फोटो रखी था नित्य सकाल उठे स्नान करे ए फोटो रे फूल दिए पानी दिए आउ से पानी को निजे पान करी संतुष्ट हो स्वामी को फोटो को मुंडिया मारी निज गृह कर्म रे लिप्त रही था। किंतु दिनकर कथा धर्मपत्नी धर्मपरायण नारी जनक ए फोटो पाखरे फूल दे पूजा पर बसिछंती हठात तांको स्वामी आसी पहुंची गले। तेबे से कहार पूजा करिवे ए फोटो रूपक प्रतिमा को पूजा करिवे ना स्वयं जहार स्वामी स्वयं आसी पहुंची तांकर पूजा करिवे। भगवान कृष्ण कहले मु जानी परा तुम्हें माने पाठशाठ पढ़ी न बेले कि अशिक्षित बेले कि तुम्हें कथा बुझी पारु न। अरे जेतेबेले निज स्वामी आसी पहुंची जाइछि सेतले फोटो को पूजा करिवार आवश्यकता नहीं। निज स्वामी रो पूजा करिवो ना फोटो रो काई पूजा करिवो। गोपी माने कहले प्रभु आमे तो सेते बेलू सेई कथा ही कहूछु जदि फोटो को पूजा न करी निज स्वामी को पूजा करा जाए तेबे हे जोगेश्वर ए संसार माया रे आमको तुमके जो फोटो रूपक स्वामी गोटी गोटी देइछ को जन्म रे से बाप थिबो को जन्म रे भाई थिबो को जन्म रे कका थिबो को जन्म रे संबंध थिबो को जन्म रे संबंध नथिबो ए जन्म रे हमको स्वामी बोली देइछ हेले ए जन्म रे हमर स्वामी हेछि पर जन्म रे जे स्वामी हबो तार तो किछि माने नाही। जदि ए जन्म रे स्वामी पर जन्म रे स्वामी हबो नाही बा ए जन्म रे स्वामी पूर्व जन्म रे स्वामी नथिला तेबे सी हमर को स्वामी आ स्वामी तो सी जे जन्म जन्मांतर पई स्वामी हे थाए। हे प्रभु मु कहूछि प्रभु जगन्नाथ स्वामी नय नपथवागामी भव तुमे तेणु मु कहूछि जगन्नाथ स्वामी मो पुओ कहूछि जगन्नाथ स्वामी मो बापा कहूथिले जगन्नाथ स्वामी मो पत्नी कहूछि स्वामी मो जगन्नाथ स्वामी मो पुत्री कहूछि जगन्नाथ स्वामी हेले स्वामी तो गोटिए स्वामी तो तुमे आ स्वामी संसार स्वामी किए अछि आमे कहा पाको कुचिबो। भगवान कृष्ण हसी देले कहले गोपी माने मु तुमको परीक्षा करूथिले गोपी मानकर भाव को मु निरीखी देखुथिली जे प्रकृति रे तुमे मते केते भल पाओ। गोपी माने कहले प्रभु पति सेवा विषय आपण जो दर्शन रो परामर्श देले आमे ता स्वीकार करूछु। आम शरीर नारीर शरीर आम शरीर पति घटरे अछंती किंतु आत्मार पति तो आपण पति ठारे ईश्वर को भावना रखी तांकर सेवा करिवा पई आपण परामर्श दैछंती किंतु पति ठारे ईश्वर को भावना रखिबा केवल से स्त्री मानकर आवश्यकता जो माने प्रत्यक्ष ईश्वर को देखि पारु नथिबे। आमे तो आपण को प्रत्यक्ष दर्शन करूछु से परिस्तर जणे विशेष व्यक्ति विशेषण ठारे ईश्वर भावना प्रतिष्ठा करिवार प्रश्न उठुछि केउठी। वियोग अवस्था रे कल्पना करिबाकू भावना करिबाकू स्मरण करिबाकू पड़ी थाए। संजोग अवस्था रे से सबुर प्रयोजन ही न थाए। परमात्मा का हेउ अथवा जे कोनसी श्लोकर हेउ वियोग अवस्था रे तार कल्पना करिबाकू होई थाए अथवा से संक्रांतीय छवि मूर्ति बा अन्य कोनसी वस्तुर दर्शन मानस चक्रे करिबाकू पड़ी थाए। गोपी माने कहउछन्ते प्रभु आमे तो आमर ईश्वर प्रभु को प्रत्यक्ष दर्शन करूछु से आपन को छाड़ी अन्य कहा विषय भावना करिबु काहेकि।
पति किए? पाति इति पति, मृत्यु भयरु जे रक्षा करिबारे से ही पति, मृत्युर जालरू जे मुक्ति करिपारे से ही पति होइथाए। मृत्यु जालरू आमको मुक्ति दे करिपारिब से होछि प्रभु। केवल आपण प्रत्येक जीवंक प्रकृत पति हेउछन्ति प्रभु, अर्थात आपण जीवर पति ईश्वर। आपण ही प्रत्येक जीवंक अन्य स्वामी, अनंत जीवंकर आपण ही अनंत स्वामी। आमे उत्तम रूपे विचार करी आलोचना समालोचना माध्यम दृढ़ निश्चिंत करी आपण पदार बिंदरे निजको समर्पित देइछु। एहिपरि भावरे गोपी माने भगवान श्रीकृष्ण सहित वाक्यालाप करुथिबा गोपी माने प्रभु को अनुमति भिक्षा करी कहले, हे नाथ, गोटे प्रश्न पचारिब तार उत्तर तो देदेल। भगवान कहउछन्ति, हे गोपी माने मो भक्तर भाव रे बंधा पड़ी जाए, भक्तर भाव रे मो निजको समर्पित कर दिए, आज तुम पाखरे मु बंधा पड़ी गली। भगवान श्री कृष्ण कहले, तुमर मन मोठारे केबे आउ किपरि लीन होई जाइछि ताहा मु जानिनी, सेपरि स्थल रे मु फेराइबी किपरि। गोपी माने कहले, प्रभु आपण आम मन फेराइबे नाही, आउ आमे मन व्यतीत गृह को फेरी पारिबु नाही। हमर पाद आपणक चरण कमल को छाड़ी गोटे पाद भी पछ को फेरिब नाही, तेणु आमे ब्रज को फेरी पारिबु नाही। जदि भी फेरू मन बीता फेरिबा असंभव। प्रभु कहले, मो जोग शक्ति बल तुम मान को सेटारे जदि पहुंचाई दिए। गोपी माने कहले, आम मान शरीर को आपण पठाई देबे, हेले मन तो आपण पाखरे पड़िथिबो ना। आमर मनर मिलन आपण सहित हो जाइछि, एबे आम शरीर आपण सहित देवा तदाकार हो जावा आमे चाहूछु। मन जेउठारे थाए जीवात्मा सेहिठारे थाए। मन तो ईश्वर को पाखरे मिशिजिब। संसार जड़ पदार्थ रे मनर लय होई पारे नाही। मन आउ संसार हेउछि विजातीय, मन ईश्वर हेउछन्ति सजातीय। सजातीय सहित सजातीयर मिलन हो जाए। मन जड़ नुहे सचेतन, सचेतन थिबारु मन चेतन परमात्मा सहित जाई मिसे। मन ईश्वर ठारे ही स्थिर हो जाई पारे। एइथिपाई ही ज्ञानी माने केवल ईश्वर को निज मन दे पाथांती। मन कौन सी स्त्री बा पुरुष को नुहे, केवल श्रीकृष्ण को दिया जाए करी हुए। मन जोठारे मिसी जाए, आत्मा भी सेही ठारे मिसी जाए। हे नाथ, आमर मन आपण ठारे मिसी जाइछि। आमे जदि बंचितु तेबे केवल आपण को जोगु आपण को पाई ही बजिछु। आपण को छाड़ी आमे कदापि अन्यत्र जाई परिबु नाही। एथर श्रीकृष्ण निरुत्तर रहिले, चुप हो गले। श्रीकृष्ण पचले, अच्छा तुम्हें माने कौन चाहूच कह, मु तुमको किपरि भाव रे स्वागत दे तुमको खुशी हेब। गोपी माने कहले, हे नाथ, केवल आपणक अधार मृत्यु आमको दान करवा कहतु, जेपरि आमे आपणक वियोग कदाकाल अनुभव न करू। आमे नित्य संजोग सबुदिन रही थाऊ। गोपी माने श्रीकृष्ण को अधार मृत मागी थिले, अधार स्मृत। आमे प्रथम जानिछे भागवतर समाधि भाषा से मुख्य मौलिक भाषा नुहे। पृथ्वीर गोटे नाम होछि धरा, कारण यह समस्त को धारण करिछि, धरी रखिछि, पोषण करिछि। पृथ्वीर अमृत को धरामृत कहते। जहाँ ये पृथ्वीर नुहे, अर्थात जो अमृत यही धरार अमृत नुहे, ताहा अधरामृत। अतएव अधरामृतर अर्थ है प्रेमामृत, ज्ञानामृत। जो अमृत समाप्ति हुए नहीं, नाश हुए नहीं, सरे नहीं, ताही होछि अधरामृत, ताही होछि ज्ञानामृत, ताही होछि प्रेमामृत। हे नाथ, हे प्रभु, आमको से ज्ञानामृत दान करवा कहतु, जहाँ प्राप्त होई आपण ठारू ईश्वर ठारू पृथकता तृतीय भाव आमर रहिब नाही।
ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧରାମୃତ, ଯାହା ପ୍ରେମାମୃତ ଜ୍ଞାନାମୃତ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ନ ମିଳିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଆସି ଦାଉ ଦାଉ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ କୃପା କରି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସବୁବେଳେ ପାଇବୁ। ଆଜି ଏହି ପ୍ରେମର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ହେଉଛି ମହାରାସର କଥା। ଗୋଟିଏ କ୍ଲିପ୍ରେ ସରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲିପ୍ରେ ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲିପ୍ରେ ମହାରାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ସରିଲା ତ ସରିଲା, ନା ତୃତୀୟ କ୍ଲିପ୍ରେ ମହାରାସର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରିବେ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଗୁଣୀଗାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଗୋପୀ ଭାବକୁ ମନ ଭିତରେ ଧରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋପୀ, ଆମେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ। ଏ ଶରୀରଟା ସିନା ପୁରୁଷ, ହେଲେ ଆମ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ନାରୀ। ପୁରୁଷ ତ ସିଏ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ସଂସାରରେ ଏମିତି ମଣିଷ ତ ମଣିଷ, ଏମିତି ଦେବତା ନାହିଁ ଯିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତ ସିଏ ଯିଏ ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରିଛି। ଏ ସଂସାର ଯାହାର, ଏ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ଚଳଉଛି, ସେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ, ସେ ହିଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜିର ବାଣୀକୁ ମୁଁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ, ଯେଉଁଠି କମେଡ଼ି ଅଛି, ଯଦି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ସେଠି ବେଶୀ ଲାଇକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ସମାଜର ସମୟ ଆସି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଯେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ସବୁଦିନେ ପାପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉଛି। ଏ ସ୍ମୃତି ସବୁଦିନେ ପାପ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉଛି। ଏ ତୁଣ୍ଡ ସବୁଦିନେ ପାପ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିଯିବା, ସଂସାରକୁ ବୁଝିଯିବା, ଜନ୍ମ କର୍ମର ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିଯିବା, ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଯିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ମନ ଭକ୍ତିଭାବ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଆମ ମନ କୃଷ୍ଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବ। ଆମ ମନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସମର୍ପିତ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସଂସାର ମୋହମାୟା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ସଂସାର ମିଛ ମାୟା, ତଥାପି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛେ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ତ କୋକେଇରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ କୋକେଇ ବାହକ ମାନେ କହନ୍ତି, ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସତ୍ୟ, ତଥାପି ଆମ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା, ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ଏହିପରି ଭାବନା ଆମ ମନରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ସେପରିରୁ ଡାକରା ଆସିବ, ତାହା କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ଭଲ ଆଉ କଥା ଅଛି, ପିଲାଦିନୁ ଧନ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ କିବା ଜାଣିଛି, କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ଉପଗତ। ତେଣୁ ପିଲାବେଳୁ ଧନ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ପିଲାଦିନୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଧର୍ମ କଥା, ଧର୍ମ ଆଉ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର କଥା ଶିଖାନ୍ତୁ। କାରଣ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହିଁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଯାହା କରୁଛୁ ସେ ହିଁ ଦେଖୁଛି ସାକ୍ଷୀ ଉପରେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେ ଆମକୁ ନେଇକି ହିଁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ, ଏ କଥା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲଗାଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ନିତ୍ୟ ବାଣୀକୁ
आगामी क्लिप रे ए रास पूर्णिमार कथा प्रभु आ गोपी मानकर मिलनर भाव को जदि श्रवण करिवार इच्छा तेरे भक्ति भाव नहेले सेतिकी प्रेमता नहेले सेतिकी प्रभु प्रति उदारता नहेले सेतिकी प्रभु प्रति समर्पित भाव नहेले याको केबे बुझी हब नाही। किंतु अनेक पापी माने अनेक कथा को कुरटना करी कहती सी भला कृष्ण परी रासलीला करुचे किंतु प्रकृत में रासलीलार अर्थ कौन बुझते नहीं प्रकृत में रासर महत्व कौन ये बुझते नहीं। आसतु आमे समस्ते श्रवण करवा प्रकृत में रास कौन रास क्या कहती रास कहीं करते आ प्रभु ये रासर महत्वता को किपरि भाव में आमे ग्रहण करुचे। आसतु आज बाण फिटे विश्राम दबा पुणी आगामी अध्याय मु आपण को से रास पंचमीर कथा आपण आगे उपस्थापन करी से आपण मैंने निश्चिंत भाव में जदि मो क्लिप भल लगुए तो निश्चित भाव में लाइक करेंगे शेयर करेंगे एवं सब्सक्राइब करने को भूलें नहीं। तेज आसतु आज बाणिकटी विश्राम दबा पुणी आसंता एक क्लिप की अपेक्षा करवा। सर्वे बोलंतु हरि 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 करिवे भवु पारी हरि जे मलय पवन काष्ठकु करंती चंदन। बोधे भागवत भगवान की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।